Hi, let's have an unfiltered conversation today. So, I'm not going to tell you the topic, okay? I just want to start by asking you a few questions and answer them in the comments or in your mind, however you feel like. So, अगर मैं स्कूल की बात करूँ, so what is the first thing about school that comes to your mind? Is it playground? Is it lunchtime? Is it that annoying maths teacher? Oh my god. Is it that chemistry period जिसमें कुछ समझ नहीं आता? Or is it something deeper? Because all of these things that I just listed are well a part of school life, okay? And they don't, I mean, they're good memories, but what I think that people don't talk a lot about is that school is not the same for everyone. I mean, ठीक है, a lot of people have amazing memories in their school life कि अरे that was the best time of my life, I had friends, I had no responsibilities, and I get it, okay? But we have come a long way since then, and now just school just isn't the same anymore. I mean, do you agree with me? If you do, let me know in the comments. But what I'm trying to say here is कि भाई स्कूल जाके ना पहले वो ऐसे लगता था कि हाँ यार आज मज़ा आएगा, आज कुछ तो नया सीखेंगे या कुछ तो मतलब विल डू समथिंग एक्साइटिंग. बट दीज डेज स्कूल हैज़ जस्ट बिकम दिस वियर्ड प्लेस, like you don't feel like going to school anymore. And I think there are a few reasons for that. So with that being said, welcome back to this channel, or welcome to this channel if you are new here, and this is where we discuss raw topics. And today I want to talk about school, and is being a topper really a measure of intelligence? So with that being said, let's dive into it. Okay, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या लगता है स्कूल जाना अच्छी बात है बुरी बात है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ दैट जाना तो पड़ता ही है. बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल, राइट? एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो फॉर मी लाइक थिंग्स हैव गॉटन मच बेटर नाउ सिंस आई स्टार्टेड 11th ग्रेड. बट मेरे लिए 5th से लेकर 10th तक स्कूल वॉज लाइक वेरी बैड. ओके, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, स्पेशली आफ्टर 7th स्टैंडर्ड. मतलब 5वीं और 6ठी तो मेरा ऑनलाइन ही था, तो 7वीं से लेकर 10वीं तक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल जाना. एंड आई यूज़ टू फाइंड वेज कि मैं कैसे घर पे रहूँ, या फिर हाउ आई शुड कन्विंस माई मॉम टू नॉट सेंड मी टू स्कूल. But unfortunately it was more than just I want to sleep in today. Like sometimes when you go to school the environment is so shit. Like I don't know who can relate with me, and I genuinely hope that very less people can relate with me on this, but somewhere I know that that's not the case, and this is what a lot of people experience. तो भाई स्कूल में ना मतलब ऐसे होता था कि जो ऐसे एकदम पॉपुलर गर्लीज नहीं होती है कि जो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉपुलर है, उनमें रत्ती भर का कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम तो मतलब ऐसे एकदम टशन में रहेंगे. वो बाकी सबको मतलब ऐसे ट्रीट करते लाइक द डर्ट. या यू गेट माई पॉइंट, राइट? सो and excuse my language, okay, but this is just going to be a very unfiltered video, and I'm just going to try and connect my experience with yours, so don't mind that. Okay, anyways, getting back to the topic. बट ये तो फिर भी ठीक है, ये तो लोग हैं, लोग तो लोग ही रहेंगे, अब उनका हम क्या ही कर सकते हैं, राइट? बट देर इज़ अ डीपर थिंग. ओके, हम जब स्कूल जाते थे तो ऑफकोर्स एग्ज़ाम्स वगैरह तो होते ही, अभी भी होते हैं. बट जब इन स्कूल दे मेक इट सीम लाइक इफ़ यू डोंट डू गुड इन एन एग्ज़ाम इट बेसिकली डिफाइंस योर एंटायर वर्थ. मतलब अगर मेरे को किसी टेस्ट में या किसी एग्ज़ाम में ढंग के मार्क्स नहीं मिले तो उसका मतलब ये है कि मैं फेलियर हूँ. ऐसा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है भाई. तो कैसे खुश रहेगा इंसान, तुम्हें बता दो अब. सो द पॉइंट हियर इज़ कि भाई मार्क्स और इंटेलिजेंस इज़ नॉट द सेम थिंग. लेट्स प्लीज़ डिटैच आवर वर्थ फ्रॉम आवर मार्क्स, बिकॉज आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे. ओके, मेरे को पहले ऐसे बहुत था कि माई सेल्फ वर्थ वॉज टाइड टू माई मार्क्स, thanks to the education system. लेकिन I have changed that. I have put conscious efforts to change that, and I think that you should too. Trust me, it will be the greatest gift you can give yourself. तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ ना कि जो मार्क्स हमको मिलते हैं दे आर बेसिकली
a reflection of how good or how bad you perform in a specifically curated system, right? और स्कूल का, एंड लेट्स बी रियल फॉर अ सेकेंड, स्कूल का और रियल लाइफ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भाई. मतलब मैं क्या करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख के, भाई मेरे को दिखते भी नहीं है एटम, मैं क्या करूँ उसको, उसका स्ट्रक्चर जान के. लेकिन नहीं, हम तो पूरा उसका स्टडी करेंगे भाई अंदर तक एकदम. ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही बोले. सो वो भी ठीक है यार, मतलब तुम यूजलेस चीज़ें पढ़ा रहे हो वो अलग बात है. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना जब टीचर्स जो हैं वो लेबल करने लगते हैं स्टूडेंट्स को कि यार ये तो कुछ नहीं बन पाएगा भाई ज़िंदगी में, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, या फिर ये मेरे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो मैं तो इसको ही टारगेट करूँगी या करूँगा वॉटेवर. भाई मतलब ना इतना उन्होंने बच्चों के साथ ना ऐसा पर्सनल राइवलरी करके रखा है ना कि, और मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ. सो या तो द पॉइंट हियर इसकी ढंग से कम थॉट आउट सिलेबस तो होना चाहिए ना यार. जैसे कि मैंने अभी बोला, मैं क्या करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जान के यार, और इतना घटिया बकवास निहायती बेवकूफ़ चैप्टर है ना वो. मतलब यार सामने वाले के ना दिमाग का ऐसा दही हो जाएगा ना वो पढ़ते पढ़ते. भाई अभी 11वीं में है तो मतलब, और आप फिर बोलोगे कि अरे पर तुमने तो चूज़ किया PCM. अरे मैंने PCM इसलिए चूज़ किया ना ताकि मेरे को ढंग के ऑप्शंस मिले, बट उसका मतलब ये नहीं आप मेरे को टॉर्चर करते रहोगे. चलो कोई बात नहीं, मैंने चूज़ किया केमिस्ट्री. 11th 12th की ना अपन बात ही नहीं करते, अपन 10th तक ही रहते हैं आज, ठीक है. तो 10th में भी मतलब इतने यूजलेस चीज़ें आप पढ़ा रहे हो, वो हिस्ट्री और वो जोग्राफी. भाई अब हिस्ट्री है, हो गया अब क्या उसका, एनीवेज. तो बेसिकली ठीक है, आप यूजलेस चीज़ें पढ़ा रहे हो, आपने ढंग से ये नहीं किया है, आपने थोड़ा सा भी थॉट नहीं दिया है कि ये कैसे यूज़फुल रहेगा, और उसके ऊपर से आप बच्चों का जो सेल्फ वर्थ है यू आर टाइंग इट टू इंटेलिजेंस. लाइक व्हाट द एक्चुअल हेल इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया. और इंडिया की तो ना भाई मतलब बात ही मत करो, अभी इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है ना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में. आपको नीट के पेपर लीक का वगैरह तो पता ही रहेगा, वो सब मुझे आई डोंट नीड टू से ऑल दैट. बट द पॉइंट इज़ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, डोंट अटैच योर सेल्फ वर्थ टू योर मार्क्स, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट द सेम थिंग. आप स्कूल में जाते हो, पता है क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली इट्स अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, इट्स द लॉ. बट वहाँ पे स्कूल में जाके ना बेसिकली आपको मजदूरी करना सिखाया जाता है यार. मतलब मे आई गो टू वॉशरूम ये पूछने के लिए भी अब मेरे को, मतलब ये काम करने के लिए भी मुझे पूछना पड़ रहा है. तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रोन अडल्ट्स दिस स्कूल सिस्टम इज ट्राइंग टू रेज, राइट? एंड आई एम लाइक सो डन विथ ऑल ऑफ दिस. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड टुडे आई वाज लाइक नहीं, आज अपन वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यू नो लाइक इट्स एवरीबडी फेसेस दिस. तो यार मतलब स्कूल इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग. मतलब कुछ लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं स्कूल के बारे में, बट at the same time it is very important to draw a line, to draw boundaries in school, because if you don't, then your mental health will get absolutely messed up, and trust me, you don't want that for yourself. So with that being said, if there's one thing you can take away from this video, it's that do not tie your self-worth to your intelligence or even your marks, and marks and intelligence are not the same thing. So with that being said, let me know what you thought about my entire rant session in the comments down below, and maybe I'll see you next time, hopefully.